દિવાળીની સાંજે લખનૌમાં એક અમાનવી ઘટના બની. એક બીમાર દલિત વ્યક્તિ છે, એ મંદિરમાં ગયા અને કંઈક ઉધરસ આવી અને એમાં એને પેશાબ થઈ ગયો છે. તો એ એના ઉપર એટલું ક્રૂર વર્તન કર્યું કે એને જે જમીન પેશાબ વળી તે ચાંટવાની ફરજ પાડવામાં આવી. તો આ દાદા છે ને એ ઉત્તર પ્રદેશમાં લખનૌની અંદર આવું બન્યું. મિત્રો, આવી ઘટના બને ને દેશની અંદર ત્યારે આપણે ભલે અહીંયા ગુજરાતમાં બેઠા હોય પણ આપણા દિલની અંદર એક આમ આક્રોશ જાગવો જોઈએ કે શા માટે દેશમાં એક પણ વ્યક્તિ સાથે જાતિ આધારિત ભેદભાવ થાય. તમે જુઓ તો શેડ્યુલ કાસ્ટના લોકો ઉપર, ઓબીસીના લોકો ઉપર, આદિવાસી ઉપર સતત આવી ઘટના બનતી હોય છે. એટલે કાંકોરીના રહેવાસી 60 વર્ષથી પીડિત રામપાલ રાવતે એની ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે સોમવારે સાંજે 7 વાગે શીતળા માતાના મંદિર પાસે પાણી પી રહ્યા હતા અને એને ખાંસી આવીને ત્યારે એક પેશાબ એનાથી થઈ ગયો છે. તો ત્યાં એક સ્વામીકાંત નામના એક વ્યક્તિ છે, એ એની ઉપર એમ કે પેશાબ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો અને એને જાતિવાદી શબ્દો બોલ્યા અને એ જમીન ચાટવા માટે એને દબાણ કર્યું. તો આવી રીતે આપણા લોકો સાથે કોઈ અન્યાય કે આવો અત્યાચાર કરે તે ખરેખર રખડવાલાયક ઘટના છે અને આરોપી સ્વામીકાંત વિરુદ્ધ વિવિધ કલમો અનુસાર એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ પણ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો, આપણે એક વસ્તુ વિચારવાની છે કે દેશની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ પછાત વર્ગની વ્યક્તિ સાથે આવી ઘટના બને તો આપણે એવું કેમ નથી વિચારતા કે મારા કુટુંબ સાથે છે કે મારા ઘરની કોઈ વ્યક્તિ છે, તો આપણે એનું દુઃખ કે એનું દર્દ સમજાશે. તો જ્યાં સુધી આપણે એવી રીતે લાગણીશીલ નહીં બનીએ કે આ ઘટના મારી સાથે બની છે, એટલે કે મારા કુટુંબ સાથે બની છે, તો જ્યાં જ્યાં તમે જો ને તો બ્રાહ્મણવાદી લોકોનું શાસન છે, ત્યાં આ જે જાતિવાદી બ્રાહ્મણવાદીઓ છે ને એની બહુ હિંમત આવી ગઈ છે અને એકની આવી તો અનેક ઘટનાઓ સતત બનતી રહી છે. પેશાબ કરવો મોઢામાં, એની ઉપર પેશાબ કરવો, આવી મધ્યપ્રદેશ, યુપી, તમે વિચાર તો કરો કે આપણે સાંભળી ન શકીએ એવી તો ઘટના થાય આપણા લોકો ઉપર. અને અહીંયા આપણા ઉપર ઘટના નથી બની એટલે આપણે એમ વિચારીએ કે આપણે તો બહુ સલામત છીએ અને આપણે શું ફેર પડે. એમ નહીં. ઘટના એ આ શાસન વ્યવસ્થા છે ને એની જવાબદારી છે કે દરેક લોકોને સુરક્ષા આપવી. તો આપણા ગુજરાતમાં પણ આવી ઘટના બનતી હોય છે, નાની મોટી સતત. હમણાં અકવાડાની જે ઘટના બની ને એ તો જે ફોજની અંદર જે બે ભાઈઓ નોકરી કરતા હોય ને એના કુટુંબ ઉપર આવી રીતે અન્યાય અને અત્યાચાર થાય અને છતાં તંત્ર છે એ કોઈ કાર્યવાહી ન કરે તો એના માટે એ રાજ્ય સરકાર જવાબદાર છે અને એ શાસન વ્યવસ્થા જવાબદાર છે અને એ શાસન વ્યવસ્થાને બેસાડનાર આપણે લોકો છીએ, એસસી, એસટી, ઓબીસી. તો ખરેખર તો હું તો એમ માનું છું કે આના માટે આપણે જવાબદારી છીએ. આપણે એવા લોકોને સત્તા સોંપીએ છીએ કે જે આપણા ઉપર અન્યાય અને અત્યાચાર રોકવામાં નિષ્ફળ છે. 1 વખત, 2 વખત, 3 વખત તમે જો સતત આપણે એવા લોકોને ચૂંટીને મોકલીએ છીએ. તો આપણે જાગવું પડશે. માનની કાશીરામ સાહેબને એક શબ્દો યાદ રાખો કે જે શાસક સમાજ હોય ને એને માર ખાવાનો વારો નહીં આવે. માર ખાવાની વાત તો દૂર, તમારી સામે કોઈ ખરાબ નજરે જોવાની પણ હિંમત નહીં કરે. તો જે શાસક સમાજ બનવા માટે આપણી પાસે તક છે, આપણી પાસે મત છે, તો શા માટે આપણે જે બ્રાહ્મણવાદી એની પાર્ટીઓને સમર્થન આપીને એમને સત્તા સોંપીએ પછી એની પાસે આપણે ભીખ માંગીએ અધિકાર માટે, અન્યાય માટે આપણે યાચના કરીએ કે અમને ન્યાય આપો. તો આ તો આપણી ભૂલ છે ને. તો ખરેખર ઓબીસીમાં આવતા સૌથી મોટો સમાજ છે કોળી ઠાકોર, એમને જાગવાની જરૂર છે કે તમે લોકો જાગો, લીડરશિપ લ્યો અને દેશની અંદર તમે શાસક બનો. શા માટે બ્રાહ્મણવાણીની પક્ષમાં ગુલામી કરવાની શરમ નથી આવતી? અને ધર્મના નામે આપણી પર અન્યાય થાય, અત્યાચાર થાય, જાતિના નામે અન્યાય અત્યાચાર થાય અને છતાં
તમે મૂક દર્શક થઈને એ જ બ્રાહ્મણવાદી પાર્ટીઓના જેના ખેસ હોય ગળામાં નાખી અને ગુલામી પ્રદર્શિત કરવા આપણા લોકો કરતા હોય તો શરમ આવવી જોઈએ. તો આ બાબતે નિવૃત્ત आईपीएस अधिकारी बीपी अशोक शू कहे छे, આપણે એનો પણ વિડિયો જોઈએ. 21 अक्टूबर को काकोरी में शीतला माता मंदिर के पास में एक घटना हुई। रामपाल नाम के व्यक्ति हैं जो अनुसूचित जाति के हैं। वो बीमार थे। कई बार ऐसा होता है बीमारी में खांसी के साथ साथ मलमूत्र निकल जाता है। मंदिर के आसपास ही वो थे और उनका पेशाब निकल गया। वहां जो केयर टेकर थे वो लोग आए और रामपाल के साथ दुर्व्यवहार किया। रामपाल को पेशाब चटाने के लिए मजबूर किया गया। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा तो लिख लिया, कार्यवाही भी की। उनकी सुरक्षा के लिए भी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है। मैं वहां 22 तारीख को गया भी था, मैंने उसको देखा। लेकिन आज हम 2025 में रह रहे हैं। आखिर काकोरी जैसी जगह जो लखनऊ के अंदर है, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि हमने भारत में समतामूलक समाज की स्थापना नहीं की। हम आदमी को आदमी नहीं समझते। लगातार धर्म के क्षेत्र से बहुत से बाबा इस बात में लगे हुए हैं कि वो आदमी और आदमी के बीच की दूरी को बढ़ाएं। कई बाबा यहां तक कहते हैं, वर्ण व्यवस्था का प्रचार करते हुए उसको बताते हैं कि वो बहुत बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था है और बहुत आदर्श व्यवस्था है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर कहीं वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं है और भारत में ही इसका प्रचार होता है। और लोगों को ये लगा कि शायद अभी सैकड़ों साल तक लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर से कंपेयर नहीं करेंगे, और इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं, ऐसी झूठी कहानियां सुनाते हैं अंधविश्वासों की, कि वो लोगों को विश्वास हो जाता है। जो दबंग आदमी है वो सोचता वाकई मैं तो दबंग पैदा हुआ हूं और दबंग मरूंगा, मेरे विशेषाधिकार हैं। तो जो भी कमजोर आदमी है, उस कमजोर आदमी को सताने में वो पाप नहीं समझते, वो अपराध नहीं समझते। वो ये समझ के चलते हैं कि ये कमजोर आदमी ये तो इसी के लिए बनाई हुआ है, और अगर हम अपनी बिरादरी के आदमी को मारते हैं तो वो तो अपराध है, लेकिन दूसरी बिरादरी के आदमी को मारते हैं तो हमारी बिरादरी के भाई भतीजे हमारे हमारे हमारा महिमा मंडन करेंगे और कहेंगे देखिए कितना अच्छा किया। इसीलिए देखा गया है कि कई लोग शेड्यूल कास्ट की लड़कियों के साथ रेप करके उनका फोटो खींचते हैं, वीडियो वायरल करते हैं और उस वायरल वीडियो को फैलाते हैं, पूरी दुनिया में भेज देंगे, जेल भी चले जाएंगे। लेकिन उनको कोई आत्मग्लानि नहीं होती। उनको ये लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया, हमने कोई जातीय जो कर्तव्य है वो निभा दिया और हमने अपना आतंक बैठा दिया, तो अब ये लोग हमारे यहाँ डर करके आसानी से मजदूरी भी करने आ जाएंगे, हमारे खिलाफ बोलेंगे नहीं, ज्यादा मजदूरी नहीं मांगेंगे। तो इस तरह की का माहौल किया जा रहा है। उसमें उनको पूरी गलतफहमी है कि जो कमजोर आदमी है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आदमी है या माइनॉरिटी का गरीब आदमी है, तो वो मान के चलते हैं कि इनका कोई पुलिस वाला नहीं है, पुलिस नहीं सुनेगा। पहली बात एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, लिख भी गई तो हम थाने से बेल करा देंगे, अगर जेल चले गए तो हम जेल से अस्पताल चले जाएंगे, और अगर मान लीजिए जेल में रहना भी पड़ा तो हम पैरोल मिल जाएगी, हमको जमानत जल्दी मिल जाएगी। हमारे जज भी हैं और हमारे नेता भी हैं, और इनका कोई नहीं है। इनके नेता है भी तो वो इनकी बात नहीं करेंगे, वो समझौता कराने का काम करेंगे। तो उनको पूरा ये विश्वास है कि इनकी ना पुलिस है, इनके पास कुछ नहीं है, ये इतने कमजोर हो चुके हैं। ये दुर्भावना लोगों में है। निश्चित रूप से ये जातिवादी भावना के खिलाफ अगर लोगों के परिवारों ने सिखाया होता, परिवारों के अंदर ये नहीं सिखाया जाता, जो दबंग परिवार हैं या जाति से तथाकथित रूप से उच्च परिवार हैं, वो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि लड़कियों का सम्मान करो, दूसरे लोगों का सम्मान करो, बंधुता का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो। वो इतना ही बताते हैं कि हाँ एक जानवर है फला, उस जानवर के साथ दया करना, और एक बिरादरी है उसके साथ दया करना। अरे भाई हर बिरादरी के साथ दया करो, बुराई क्या है? हर धर्म के साथ बुराई करो, क्या बुराई है? हर जानवर के साथ दया करो, क्या बुराई है? क्या सिर्फ एक बिरादरी और एक ही पशु बनाए दया करने के लिए? दया तो हर मानव पर, हर जीव पर करनी चाहिए ना। और ये देश तो बुद्ध का देश है, इसमें तो निश्चित रूप से आपको जो कंपैशन है, जो करुणा है, और जो आपकी समानुभूति है, सहानुभूति है, सबके प्रति होनी चाहिए। जो अति विश्वास है और अति आत्मविश्वास है दबंग जातियों का, वो ना संविधान को मान रहे हैं,
ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना कानून मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को जूता फेंक के मार रहे हैं। तो उनके दिमाग में पूरी तरह से यह है कि हाँ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और वास्तव में कई बार ऐसा देखा जाता भी है कि हाँ, उनका कुछ बिगड़ भी नहीं रहा। तो जो शिकायत करने वाला है वो सोचता है जब सुप्रीम कोर्ट को के जज को जूता मारने पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने पर कुछ नहीं बिगड़ा, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो उससे लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता है, वो मनबड़ हो जाते हैं। और जब बड़े आदमी के अपमान में वो सफल हो जाते हैं तो वो छोटे आदमी का अपमान लगातार करते रहते हैं। तो इसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि जो SC/ST एक्ट की धाराएं लग रही हैं वो सही धाराएं लगाई जाएं। और इनके साथ जो लोग बार बार इस तरह की घटना करते हैं जिससे बड़ा झगड़ा हो सकता है, वो NSA की धारा भी लगाई जाए और UAPA की भी धाराएं लगाई जाएं। अभी एक हाई कोर्ट के जज साहब ने आदेश भी दिया था वहाँ के SP को, और कहा भी था कि कड़ी कार्रवाई करिए। हालांकि उन जज के साहब के साथ बाद में सूचना मिली, शायद ट्रांसफर हुआ उनका, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं है। पर फिर भी न्याय के साथ अगर खड़े होंगे तो आप शांति का निवेश कर रहे हैं, और वो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। इस तरह के जो SC/ST एक्ट के जुर्म है उसमें लगभग 200-300 लोग तो रोज अस्पताल जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। लेकिन 500-600 लोग रोज पूरे देश के जो SC/ST एक्ट का अपराध करते हैं वो जेल भी जाते हैं। हम तो उनसे कहते हैं भाई क्या तुम्हें जेल जा करके अपना कैरियर खराब करके आपको क्या मिल रहा है। लेकिन उनको एक जातीय नशा मिलता है, एक महिमा मंडन मिलता है कि हाँ, वो क्षेत्र के दादा हो गए, उन्होंने कमजोरों को पीट लिया। तो परिवारों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ऐसे लोगों की तारीफ बंद होनी चाहिए। कानून तो अपना काम कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन जो समाज है, समाज नहीं चाहता, बहुत से समुदाय नहीं चाहते, बहुत से मोहल्लों के अंदर ऐसा माहौल नहीं है कि उसमें लोगों को ये सिखाया जाए, माँ बाप भी सिखाएं, पड़ोसी भी सिखाएं, और जो समुदाय है वो भी सिखाएं कि भाई सभी पर दया करो, स्ट्रेंजर भी है, अजनबी भी है, दूसरी बिरादरी का भी है, तो उस पर भी कोई ऑनर किलिंग की जरूरत नहीं है, मॉब लिंचिंग की जरूरत नहीं है। अगर कोई शिकायत है, आपको कोई गलत काम कर रहा है और आपको लगता है कि वो अपराध है या आपको अपमानित कर रहा है, तो आप जाइए, थाने जाइए, आप कोर्ट जाइए, आपके पास बहुत रास्ते हैं, आप शिकायत करिए, उसको भी सजा मिलेगी। लेकिन आप अपने हाथ में अपना कानून लेकर के जो लोगों को मारते पीटते हैं, कहीं पेशाब छिड़कते हैं, कहीं पेशाब पिलाते हैं, कहीं गंदे गंदे काम करवाने के लिए, कहीं गैंग रेप, कहीं मान मर्दन, कहीं जूता फेंकना, इस तरह की शिकायत करते हैं, तो समाज में निश्चित रूप से ये तो आतंकवाद है। तो ये जातीय आतंकवाद खत्म होना चाहिए। कहीं काकोरी में हो रहा है, कहीं दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, कितने रोज कोई ना कोई कांड नजर आता है। सोशल मीडिया की वजह से वो छुप नहीं रहे हैं। मेन मीडिया को भी इसको कवर करना चाहिए और सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए।